All right, traders, a very warm good afternoon to everyone. It's 3rd of May, 1:05 p.m. and I, Avril Pamicha, welcome you all to post-market analysis, outlook and expectations for the market for the next week. All right, so basically in this video, since this is the start of the month of May, we'll also include the monthly analysis of Nifty and Bank Nifty. Right, the last monthly analysis we did at the starting or I think end of the month of April, starting month of May, sorry, starting month of April or end of March, I think so. You can go and have a look at my channel. But essentially, since this is the starting of the month of May, we will also include the monthly analysis. It will be a quick analysis, but since monthly analysis is also important from longer perspective for positional perspective, that where the Nifty is heading or it might head, right? And then we'll also discuss in this video basically the next week's outlook, that how the next week is, how the next week might gonna look, right? What will be the crucial levels, what is the OI data, what sectors are performing good and bad, right? We'll analyze everything, and we'll also discuss that for Monday, right? Today is Saturday. For Monday, how can the markets open, and based on the opening we can decide that how can we trade the markets essentially, right? So from monthly till 15 minutes we'll look at every time frame, and we'll analyze that what can be the highest probabilistic move for the markets for the coming week and for the coming month. Alright, but before starting the discussion, if you are someone from the Telegram group and you have been watching our videos from a long time, leave a like, leave a comment. If you have any doubts, support the video more. The more support you guys give it to me, the more contributions I will be able to make for you guys, right? If you are someone new watching the video for the first time, please do watch till the end. I guarantee you that you will not go empty handed, and you will, of course, you will learn something good. At the end of this video, we will also analyze the OI data for both Nifty and Bank Nifty, that where are the crucial support and resistance level according to OI data. OI data basically indicates the big money, कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपका बड़ा पैसा है, जो मोटा पैसा है, जिसको स्मार्ट मनी बोलते हैं, वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहा है कि वेयर विल द मार्केट टेक रेजिस्टेंस, वेयर विल द मार्केट टेक सपोर्ट, right? So and also, if you have not joined our Telegram group, free Telegram group, I leave the link to that Telegram group. You can go ahead right away and join that group. In that group we discuss basically everything in and out from trading, whether it's swing, positional, intraday, whatever it is. We also provide intraday live markets commentary to our members, so that you are able to perfectly trade the markets. For example, on Friday, yesterday's market, when the markets broke out 24, okay, that we'll discuss on charts, but I'll be leaving my the link to my Telegram group in the description box. Do join it, and share it with your trader friends, and you can stay in the group. It's free of cost as of now, and you can just, if you do not believe us or trust us, you can stay, watch our trades, watch our recommendations, watch our analysis, right? We give everything in and out regarding trading, whether it's global scenarios, whether it's events, whether it's Fed, everything, right? So let's go ahead and start with the discussion, and पहले एक बार देख लेते हैं कि फ्राइडे को मार्केट में हुआ क्या, एंड हाउ डिड वी ट्रेड दीज मार्केट्स, हाउ डिड वी एंटिसिपेट कि ये जो एक ब्रेकआउट है, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट होगा. एंड मैंने, आई हैव नॉट ओपन माई टेलीग्राम विंडो. लेट मी जस्ट go ahead and open it, and then we'll see that what message I posted on my Telegram group. Okay, let's straight go ahead and go to our Telegram group. See, if you can see exactly at 10:04 a.m., 30 minutes closing above 24,500 will trigger longs, but not executing this. Generally what we do is, in the morning, right, just before the market start at 8:30 or 9 o'clock, I post my intraday message and I mention that these are the levels, and above which you can trade and below which you can trade. So we gave that 30-minute close above 24,500, you can go long. But today specifically, it was for the first time I mentioned that we are not executing this, because we are not feeling that this is good as per risk to reward. The moment I posted this, the market started falling. So if you see, I posted this message at 10:04 a.m., and I'll take you to the 10:04 candlestick. This was the 10:04 candlestick, and from that moment, that was the top of the market, and this top was not able to achieve for the rest of the day. See, I'll tell you why this happens. होता क्या है,
The markets closed in the last on Thursday, right? The markets closed very negatively in the last 30 minutes, but जो average closing आई थी वो काफ़ी ऊपर आई थी. So we opened around this and मार्केट खुलते ही मार्केट ने 400 को ब्रेकआउट किया और उसके बाद 500 को भी ब्रेकआउट किया. बट 500 के ब्रेकआउट के बाद हो क्या रहा था कि ये ब्रेकआउट, आई वॉज सीइंग कि ये जो ब्रेकआउट था ये कैंडल्स बहुत स्ट्रांगली बननी चाहिए थी, बट दीज कैंडल्स वर वेरी वीक कैंडलस्टिक, बहुत छोटी छोटी कैंडलस्टिक बन रही थी. तो मुझे देख के लगा कि ठीक है, और अगर कोई भी लेवल का ब्रेकआउट होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द लेवल एंड इट्स बीइंग हिट आई थिंक मल्टीपल टाइम्स, तो ये मान लो ब्रेकआउट हुआ, तो ट्रेड आप, बुलिश जो ट्रेड है वो यू विल नॉट टेक द ट्रेड हेयर. मान लो ये 24,500 का लेवल है, ये ब्रेकआउट हुआ, इसके रीटेस्ट पे आप यहाँ पे पोजीशंस लोगे. सो लेट्स सपोज हमने तो मना ही कर दिया था कि बुलिश एंट्री लेना ही मत. सो 24,500 पे अगर आप लेते तो यू वुड हैव एंटर्ड लॉन्ग हेयर और आप इस कॉइन का एसएल देते, तो आपका ये एसएल जाता ही जाता. नॉनदलेस हमने लॉन्ग्स दिए ही नहीं. वी एडवाइज्ड द ट्रेडर्स दैट इट्स बेटर टू डू नॉट ट्रेड दिस ब्रेकआउट बिकॉज, और ये मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको बताऊंगा होता क्या है. एक ये भी बड़ा रीज़न है मैंने मना किया था, क्योंकि एग्जैक्टली एंड दिस आई हैव सीन मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं और बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इंट्राडे लॉन्ग्स कब आता है, जब 30 मिनट्स या 1 आवर कैंडल से क्लोज हो जाती है. एंड इन दिस राइट आई पर्सनली हैव बीन ट्राइड मल्टीपल टाइम्स. क्या करते हैं ये लोग 30 मिनट्स में, हम जो टेलीग्राम में फॉलो करते हैं दैट इज़ 30 मिनट्स, बट ये क्या करते हैं 30 मिनट्स का क्लोज करते हैं, साथ में साथ एग्जैक्टली 1 आवर का भी क्लोज करते हैं, ताकि बहुत सारे ट्रेडर्स इनको ट्रैप हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स कहते हैं 1 आवर सस्टेनमेंट पे यहाँ पे लॉन्ग्स इनिशिएट करते हैं. एंड दिस इज द पैटर्न व्हेन एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर ये 10:15 पे कहीं क्लोज हुआ है ये कैंडल, और अगर ये 10:15 पे यहाँ पे क्लोज होती है, इट इज़ हाईली प्रोबेबल कि ये रिवर्स कर जाएगा. यस ये भी एक प्रोबेबिलिटी, यहाँ से एक और आर्ली कैंडल बन जाती, बट मैंने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ड्रिल करके देखा कि यहाँ पे ये देखो 5 मिनट्स पे, एज आई वाज मेकिंग यू गाइस सी, कि ये जो कैंडल स्टिक्स बन रही थी वीक कैंडल स्टिक्स बन रही थी. सो ऑफकोर्स आप यहाँ पे लॉन्ग जाओगे नहीं, एक रीटेस्ट आएगा इंट्राडे 20 मिनट्स 20 EMA 50 EMA तक आप लॉन्ग जाओगे, राइट. बट हमने पूरा ही एडवाइस दिया. एंड फ्राइडे को व्हाट हैपेंड इज मार्केट्स ब्रोक आउट, बट इट वाज इवेंचुअली अ फॉल्स ब्रेकआउट. एंड जनरली फॉल्स ब्रेकआउट जब जब मार्केट में हुआ है, तो जितनी वो वेलोसिटी या जितनी स्ट्रेंथ से ऊपर जाता है उतनी तेज स्ट्रेंथ से नीचे भी आता है, राइट. So this was the price action on Friday. Let's straight go to the monthly chart and we'll discuss that monthly पे क्या चल रहा है, since it's a monthly analysis video. Okay, so last month मार्केट का जो क्लोज आया था फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, दैट वाज वेरी वेरी बुलिश. एंड जो अप्रैल का मंथली हाई है दैट इज अराउंड 24,500 ओनली. तो ये ब्रेकआउट करने का 24 आई थिंक 350 है मार्केट का लास्ट मंथ का हाई. आप हल्का सा ऊपर और लोगे तो आपको 350 हाई मिलेगा, राइट. सो मार्केट ने जो 24,350 है वो ब्रीच करने का ट्राई किया, बट आके वीकली क्लोज उस लेवल के नीचे ही दे दिया है. अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को देखो, मेरे को अभी नेगेटिविटी फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा. आई एम नॉट सीइंग एनी नेगेटिविटी. इट्स अ हेल्दी मार्केट. वी सॉ आई थिंक 1 2 3 4 5 5 months बैक टू बैक रेड मंथली कैंडल्स ऑन निफ्टी 50. बट जो 6th मंथ था वो एक अच्छा रिकवरी हुई एंड उसके बाद मार्केट नीचे भी गया, बट यहाँ से भी एक बहुत शार्प रिकवरी मार्केट को देखने को मिली. So now market has two very broad ranges. Market has a two very broad levels and you can say a broad range also. तो यहाँ पे आप एक ये रेंज ले सकते हो और एक ये रेंज ले सकते हो. सो फ्रॉम 22,000 टू 24, ऑलमोस्ट 500, रफली 2500 पॉइंट्स की रेंज है ये मार्केट की. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट अनटिल अनलेस मार्केट्स गिव अ वीकली क्लोज अबव 24,500, मार्केट इस पूरी रेंज में ऑसिलेट करेगा. और ये दिस वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट टू लास्ट मंथली ऑल्सो, कि मार्केट जब इतना बड़ा मार्केट के पास डाउन रैली आया तो स्ट्रेट वी शेप रिकवरी नहीं आएगी. दिस इज नॉट 2021 2022 कि हमारा मार्केट दैट आवर मार्केट्स आर एट चीप वैल्यूएशन. सो what from my perspective in monthly time frame markets can do, since it's a first hit to this level, क्योंकि यहीं से मार्केट हुआ क्या था कि जब मार्केट गिर रहा था तो मार्केट यहाँ पे एक रिबाउंड मार के गिरा था, तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है. ऑलराइट, तो इसको मैं मार्क भी कर दूंगा.
विच इज रफली अराउंड 24,880 का लेवल है। तो मार्केट अब देखो मंथली टाइम फ्रेम से हमने वी हैव डन अ गुड 2 मंथ अपसाइड, एंड मेरे को क्या लग रहा है कि एक छोटा डाउन साइड मार्केट दे सकता है टिल 50% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस लास्ट मंथली कैंडल स्टिक। सो ये जो लास्ट मंथली कैंडल स्टिक है, इसका रफली अगर आप 50%, और ये जो लाइन है ना, if this is the line, I'll take this line a little bit down, right? And what is the 50% of 50 percentage of last monthly candle? It is roughly around 23,000 level, 23,000, 23,100 रफली ये आता है। सो ऑन एन एवरेज इसको आप 23,000 ही पकड़ लो, राइट। सो 23,100 का लेवल इज द 50% रिट्रेसमेंट। अगर if the markets are reaching this 50% level, there is a high probability that markets might test प्रायर मंथली लो। क्योंकि ये हमेशा एक स्ट्रैटेजी देखी गई है कि अगर पिछले महीने का 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट हो रहा है ऑन द डाउन साइड, सो मार्केट्स माइट टेस्ट दिस लो, राइट। सो एक ट्रेड यहाँ पे बन के आ रही है ऑन अ बिगर परस्पेक्टिव कि अगर मार्केट एक वीकली क्लोज 23,100 के नीचे देता है जस्ट लाइक दिस, you can trade till this point, but this is a very पोजिशनल ट्रेड। इट्स नॉट अ दैट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कल जाके पुट ले लो कि मार्केट ये तो करेगा ही करेगा, नो। दिस वी विल सी ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स दैट व्हाट द मार्केट्स कैन डू ऑन वीकली टाइम फ्रेम। बट मंथली टाइम फ्रेम में दो बड़ी रेंजेस हैं, नो सॉरी, दो बड़ी लेवल्स हैं एंड एक सिंगल रेंज है। द सिंगल रेंज, वन रेंज इज फ्रॉम 24,300 टू 24,800। मार्क भी कर देता हूँ मैं आप फॉर यू गाइज, आई ऑल्सो मार्क दिस रेंज, एंड एक ये रेंज है। सो फ्रॉम माई परस्पेक्टिव फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स मार्केट्स विल ऑसिलेट, क्योंकि यहाँ से देखो अब मार्केट के पास बहुत ऑलमोस्ट 2 मंथ्स की अपसाइड हो चुकी है। सो मार्केट्स के पास ऐसा कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है अच्छा कि मार्केट्स गो फर्दर अप, राइट। एंड इवन if the markets wants to go further up, they need to do a retracement till this point and then go ahead, ठीक है। yes, if we cross, because देखो होता क्या है, what happens is we talk in perspective of levels, क्योंकि हर एक लेवल पे there is accumulation of buyers and there is accumulation of sellers। तो जिन लेवल्स पे accumulation होगा बायर्स और सेलर्स का, वो लेवल अगर ब्रीज आउट हो रही है तो उसके ऊपर की लेवल्स ओपन अप होती है, सिंपल। तो इस रेंज में फ्रॉम 24,300 टू 800, अगर ये रेंज के ऊपर मार्केट क्लोज करता है, इफ अबव 24,500 और 600, if the market closes on daily time frame or weekly time frame, we might be headed for 25,000 and 25,500, वो हम वीकली पे देखेंगे। बट अगर ये रेंज एसेंशियली निकलती है तो फर्स्ट टारगेट आपका 25,000 होगा और उसके ऊपर आपका पोजिशनली 26,000 आपका ओपन अप हो जाएगा। अगर ये 26,000 कब ओपन अप होगा, इफ वी सी द मंथली क्लोजिंग अबव 25,000 और एट रफली 25,000, तो ये 1,000 पॉइंट की और रैली आपके पास आ जाएगी। इफ द मंथली क्लोज इज बिलो 23,000, 21,700 इज ऑन द कार्ड्स, एंड अगर 21,700 ब्रीच हुआ तो नीचे वाले डाउन फ्रेम पे मार्केट के पास सीधा ये लेवल है विच इज 23,300। तो दिस इज द ब्रॉडर परस्पेक्टिव, ये एक ब्रॉडर आउटलुक है, और मैं ये दो रेंजेस यहाँ से आई विल डिलीट इट, ठीक है। लेट्स क्विकली गो टू वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, मंथली पे मुझे बिल्कुल नेगेटिव नहीं लग रहा है। नेगेटिव मंथली पे कब होगा, जब व्हेन द लेवल ऑफ 23,100 विल बी ब्रोकन डाउन एंड सस्टेन्ड ऑन डेली और वीकली, तब प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी 21,750 की, ऑलराइट। बट मेरे को हाईली प्रोबेबल इवेंट लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट एक नेगेटिव और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के साइंस आ रहे हैं ब्रॉडर मार्केट में, तो मार्केट माइट डू अ मूव लाइक दिस। ये कंफर्म कब होगा, वीकली टाइम फ्रेम पे, जब प्रायर वीकली लो या डेली टाइम फ्रेम पे प्रायर डेली लो के नीचे क्लोज करेंगे हम, तब एक ही कंफर्मेशन आएगा। विल गो एंड विल हैव अ लुक ऑन वीकली टाइम फ्रेम, ऑलराइट। सो वीकली टाइम फ्रेम पे व्हाट वी डिड दिस वीक इज वी ट्राइड, and this is also a decent I'll not say this as a bearish close, but still for this week, for last week we closed above prior weekly high, which was a bullish trigger for me, and that's why we saw this candle. But this week we are closing exactly at the high of the previous week. We are not closing above or we are not closing below. It means the markets are confused, and it's a the markets, the traders, the big money is not going that much bullish at this level.
राइट। सो वीकली हाई अगर आप टेक्निकली देखोगे तो आपके पास वीकली हाई निकल के आता है 24,600। सो मंडे को अगर 24,600 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 24,870 एंड 25,000 विल बी एन ईजी लेवल। सो ऑन स्विंग परस्पेक्टिव अगर आपको लॉन्ग जाना है सो यू विल ओनली गो लॉन्ग अबव 24,600 इफ एन आर्ली और 2 आवर कैंडल वट एवर योर सिस्टम सेज। मैं यही कहूँगा कि आर्ली क्लोज हो जाए तो गो लॉन्ग अबव 24,600 टिल 24,870 एंड 25,000। 25,000 और 800 पे भी मार्केट को एक सप्लाई जोन मिलेगा क्योंकि ये वाला कैंडल यहाँ पे ये वाला कैंडल है। तो मार्केट्स अगर इस लेवल को रीच करते हैं तो यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है या नहीं करता है। अगर मार्केट यहाँ पे 2-3 दिन सस्टेन कर जाता है तो देन वी आर ओपन फॉर दिस ट्रेड। बट ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम इफ द मार्केट्स आर टचिंग 24,800 एंड एक आपको बड़ी नेगेटिव रेड कैंडल से दिख गई तो इट्स अ साइन दैट मार्केट्स आर रेडी टू रिवर्स। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। ऑन द डाउन साइड द वीकली लो इज रफली अराउंड इफ यू सी 24,000। ठीक है, तो 24,000 अगर ब्रीच होता है मार्केट में और डेली क्लोज 24,000 के नीचे लेट्स सपोज ऐसा आ गया सो इट इज़ हाईली प्रोबेबल दैट मार्केट्स माइट टेस्ट दिस थिंग। सो जो हम मंथली पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक रिटेस्ट आने से फिर मार्केट जाएगा, सो ये वाली ट्रेड आपको किसके नीचे मिलेगी? You will find this trade below 24,000. So below 24,000 this is the level. Below 24,000 if we close on daily basis, but closing बहुत important है। Alright, closing is very very important. So below 24,000 if we close on daily basis we might be heading for 23,000 and 23,000 के नीचे भी अगर close हो गया then we might be heading for 21,750. Alright, above 24,600 we will go long swing basis. Below 24,000 we will go short swing basis till 23,000। बट 24,000 के नीचे पहला मूव आएगा आपका 23,850, सेकेंड मूव आपको देख मिल के आएगा 23,200 एंड इवेंचुअली 23,000। ठीक है, अब मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे 24,600 के ऊपर 870, 870 के ऊपर 25,000। अगर 24,600 के ऊपर डेली क्लोज आता है तो 25,000 आई थिंक इट्स अ पीस ऑफ केक, बहुत इजीली आ जाएगा। बट मार्केट बहुत क्रूशली इस पूरे जोन में बहुत क्रूशली फैक्टर करेगा कि यहाँ पे हम 2-3 दिन सस्टेन कर रहे हैं तो ये वाला लेवल ओपन हो जाएगा। इफ़ यहाँ पे लेवल आने के बाद इफ़ द मार्केट्स आर मेकिंग काइंड ऑफ अ बेयरिश रिवर्सल पैटर्न, let's suppose inverse red hammer or shooting star anything, then it is highly probable that markets might reverse from this point, right? Let's go to daily time frame and let's see। और weekly time frame पे भी मुझे as such कुछ bearish नहीं लग रहा है। next week का close देखना पड़ेगा, next week का close कहाँ पे आता है market पे। alright, let's go to daily time frame। daily time frame पे देखो market क्या कह रहा है। daily time frame पे एक बहुत अलग पिक्चर आपको दिखेगी। क्यों? while I'll tell you। और ये वाला जो रीटेस्ट है ना मैं आपको बताता हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन का भी रीटेस्ट है बनेगा इसमें। ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ से, तो मार्केट क्या कर सकता है, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने भी आ सकता है। बट ये सिंस एक ये लोअर गोइंग ट्रेंड लाइन है तो, और आप है ना इसको एक तरीके से और लेवल्स फाइंड कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ से एक फिबोनाची ड्रॉ करो और इसका 50% देखो, रफली रफली वही लेवल आता है 23,200। तो 23,100 200 अगर मार्केट रिवर्स करता है यहाँ से तो ये एक ट्रेड बनेगी, वो किसके नीचे बनेगी? 24,000 के नीचे एक ट्रेड बनेगी जो वीकली लो है ये वाला। सिंपल, बहुत एक सिंपल स्ट्रैटेजी ट्रेड बता रहा हूँ। 24,000 के नीचे डेली क्लोज आया, ये सिंपल ट्रेड 23,100 200 तक बनेगी। यहाँ पे मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करेगा एक बार, ऐसा ऐसा रिवर्स करने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि एक डबल टॉप बना के मार्केट फिर एक ये चीज़ रिटेस्ट करे। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी, बट वो हम एक लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में देखेंगे। बट येस, 23,100 से 200 बहुत एक अच्छा सपोर्ट जोन है। ठीक है, इफ द मार्केट रिवर्स फ्रॉम हेयर। यहाँ से शॉर्ट ट्रेड कब लेना है? जब स्विंग शॉर्ट ट्रेड कब लेना है? जब 24,000 इज ब्रीच्ड ऑन द डाउन साइड एंड वन सिंगल डेली कैंडलस्टिक इज क्लोज ऑन दिस टाइम फ्रेम, राइट? अब डेली टाइम फ्रेम पे मुझे देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट है, दिस इज अ वेरी वेरी बिग क्लस्टर। और जब भी मार्केट नीचे से रैली करके अपर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, इट इज अ साइन दैट मार्केट्स वांट टू रैली मोर अबव, राइट? बट ये इतनी इजीली रैली नहीं करेगा
क्योंकि सबको दिख रहा है यहाँ पे, देखो एवरीबडी नोज कि यहाँ से इतनी बड़ी रैली हुई है तो ये साइडवेज गया है, तो मेजॉरिटी लोग क्या बैठ करेंगे कि हाँ भाई एक रिवर्सल आएगा। तो हो सकता है, और देर विल बी सम सेक्शन ऑफ ट्रेडर्स हु विल बी एक्सपेक्टिंग कि नीचे से रैली करके आए बट अपर लेवल पे सस्टेन करेगा तो ये ब्रेकआउट आएगा। सो हो सकता है मार्केट नीचे आके ट्रैप करे एंड पीपल विल स्टार्ट शॉर्टिंग द मार्केट फॉर द लेवल ऑफ 22,000, बट यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेके मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दे दे, राइट। और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल क्यों आएगा मैं आपको समझाता हूँ। ये जो कैंडलस्टिक आप देख रहे हो ना, ये वाली, ये बहुत बुलिश कैंडलस्टिक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे कॉल ऑर्डर्स बैठे हैं एंड दिस इज ऑल्सो अ क्लस्टर ऑफ ऑल द मूविंग एवरेजेस, ठीक है, ऑलराइट। बट यहाँ पे भी देखो, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ क्या किया, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद एक क्लस्टर बनाया एंड मार्केट रिवर्स्ड। और मार्केट ने रिवर्स जो पैटर्न है, अगर आप हिस्ट्री से देखोगे, मार्केट ने रिवर्सल पैटर्न कैसा बनाया, एक बिग ग्रीन कैंडल स्टिक थी, द मोमेंट वी स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन बिलो द 50% ऑफ दिस ग्रीन कैंडल स्टिक, ये जो ग्रीन कैंडल स्टिक है इसके 50% से ज़्यादा जब नीचे हम जाना स्टार्ट किए तो हमारे पास एक नया बेरिश ट्रेंड निकल के आ गया, right? So the same thing, this can happen, the same thing can happen this time also, कि अगर हम 50% से ज़्यादा पिछले कैंडल स्टिक को रिट्रेस कर दे, वो ये वाली कैंडल स्टिक होगी, सो विच इज़ रफली प्रायर डेली लो। सो यहाँ पे हम डेली लो भी मार्क कर देते हैं और यहाँ पे देखो एक रेंज में भी फंसा हुआ है मार्केट। एंड ये है ना एक बहुत बड़ा पॉइंट है प्राइस एक्शन का, इसका एक नोट बना लो और अपने उस पर यू कैन ऑन योर नोटिस बोर्ड और ऑन योर इन योर नोट्स यू कैन स्टिक इट। Markets always move in the pattern of trending markets, then sideways, then trending. Direction of that trending will be decided upon the sentiment and data, but markets हमेशा ऐसे मूव करता है, ट्रेंडिंग मार्केट आएगा, फिर धीरे धीरे मार्केट साइडवेज करेगा, फिर मार्केट डिसीजन लेगा कि इस रेंज को तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट अगेन ट्रेंड होगा। सो ट्रेंडिंग, साइडवेज एंड अगेन ट्रेंडिंग, सो ये टीएसटी तरीके से ही मार्केट मूव करता है, राइट। सो ये आपको बहुत एक ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट में अब ये चीज़ यहाँ पे भी प्रूफ हो रही है। सो वी सॉ अ वेरी वेरी गुड ट्रेंडिंग फेज और उसके बाद साइडवेज आएगा एंड द बिगर द साइडवेज फेज द बिगर विल बी द नेक्स्ट ट्रेंडिंग मूव एंड द बिगर द ट्रेंडिंग मूव द बिगर विल बी द साइडवेज फेज। तो ये हमेशा याद रखना, मार्केट मूव्स इन दिस फेज एंड दिस मैनर ओनली, ट्रेंडिंग, साइडवेज एंड ट्रेंडिंग। सो प्रायर डेली लो जो आपका निकल के आ रहा है वो है 24,200 और बहुत सारे पहले दिनों का भी प्रायर डेली लो है। सो इफ़ वी स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन बिलो 24,200 और 24,200 के नीचे एक आर्ली क्लोज हो जाता है, सो 24,000 विल बी एन ईजी ट्रेड। बिलो 24,000 23,850 एंड बिलो 850 स्ट्रेट मूव आएगा आपका 23,500 एंड 23,200 तक का, सिंपल। प्रायर डेली हाई क्या है, 24,600, सिंपल है। 24,600 वीकली हाई भी है, डेली हाई भी है। सो अबव 24,600 अब अगर आर्ली क्लोज होता है तो जितने भी यहाँ पे जो कॉल सेलर्स हैं ना वो ट्रैप होंगे और वो एग्जिट करेंगे। एंड 24,600 के ऊपर 24,870, 25,000, सिंपल क्लियर लेवल से। ऑलराइट, लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड ओपनिंग के बेसिस पे डिस्कस करते हैं कि ओपनिंग के बेसिस पे कैसे हम मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक आपके पास रफली एक रेंज है 24,600 एंड 24,200, इस रेंज में ट्रेड मत करना, मैं आपको सिंपल क्लियरली बता देता हूँ। 24,500 भी मैं एक बार यहाँ से हटा के आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी देता हूँ, प्लीज़ डू नॉट ट्रेड इन दिस रेंज। ये जो एक रेंज है इस रेंज में ट्रेड मत करना, लेट द मार्केट कम आउट ऑफ दिस रेंज 24,600, 24,200। बिलो 24,200 वी विल बी टारगेटिंग इंट्राडे शॉर्ट्स, बिलो 24,000 इट दे विल बी कन्वर्टिंग टू स्विंग शॉर्ट्स एंड बिलो 23,500 इट विल बी पोजिशनल शॉर्ट्स। 23,500 या 23,200 का जो रफली रेंज है, सपोर्ट रेंज जो हमने डिटरमाइन किया ये वाला, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो पोजिशनल शॉर्ट्स जाएंगे फॉर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। सो इंट्राडे शॉर्ट आएगा 23,200 के नीचे, स्विंग शॉर्ट आएगा, स्विंग शॉर्ट इज फॉर 1 वीक 2 वीक, स्विंग शॉर्ट आएगा आपका 24,000 के नीचे एंड आपका पोजिशनल शॉर्ट आएगा 23,200 के नीचे, सिंपल। इंट्राडे लॉन्ग आएगा 24,600 के ऊपर, स्विंग लॉन्ग आएगा 24,800 के ऊपर, पोजिशनल लॉन्ग आएगा 25,000 के ऊपर। 25,000 के ऊपर वी आर टारगेटिंग 26,000, बट आई डाउट दैट दिस विल हैपन क्योंकि हम नीचे से एक बहुत ऑलरेडी एक रैली करके आ चुके हैं। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज़ है, लेट्स सपोज ये एक 0 to 100 का स्केल है, अगर वो 0 से ट्रैवल करके 100 आ चुका है
तो उसको 100 से 150 जाने में बहुत एफर्ट लगेगा. इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ बुलिशनेस इन द मार्केट टू गो फ्रॉम 100 टू 150. इट हैज इफ इट हैज स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम जीरो. बट अगर यही ट्रैवल आपका 80 से स्टार्ट होता है तो 80 से 100 आने में बहुत कम समय लगता है, एंड ये जा सकता है 150 तक. And if the travel has started from zero and it has come till 100 and it wants to go till 150, it has to sustain around 800 for longer time, right? अगर ये ब्रेकआउट होता भी है मार्केट के पास, लेट्स सपोज कि मार्केट 0 से 100 आया ऐसे करते 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 और यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और ये ब्रेकआउट दे दे, तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट होगा. ये बहुत जल्दी जाएगा भी ऊपर और जल्दी नीचे भी आएगा. फिर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा, देन इट विल टेक अ डिसीजन दैट इट हैज़ टू ब्रेक डाउन और इट हैज़ टू गो अप. सो ये चीज़ भी एक याद रखना. ठीक है. ऑलराइट. सो वी हैव डिस्कस्ड इंट्राडे, वी हैव डिस्कस स्विंग, वी हैव डिस्कस पोजिशनल. अब अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो मेरा जो सिनेरियो है वो बाय एंड डिप्स हो जाएगा. आई विल जस्ट, अगर मान लो लेट्स सपोज द मार्केट्स आर ओपनिंग अराउंड 24 550 500, so my patience will only be tested in the crossing of 24,600. 24,600 होते ही I will initiate my longs, early close above it. If the markets are opening very very big gap down, तो मैं एक sell on rise market expect करूंगा कि अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है, इफ द मार्केट्स आर ओपनिंग अराउंड 24,200, मार्केट यहाँ सस्टेन करेगा, यही छोटा सा पुल बैक देके आप ये एक शॉट ऐसा ट्रेड कर सकते हो, ऐसा मूव सिंपल. इफ द मार्केट्स आर ओपनिंग फ्लैट, वेट फॉर दिस रेंज टू गेट taken out. 24,600 on the upside, 24,200 on the downside. Simple. आई होप ये निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन आपको क्लियर हो. लेट्स क्विकली गो टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में देखो मंथली जो आउटलुक है वो डिस्कस करते हैं. एंड बैंक निफ्टी में मंथली बहुत बुलिश है, कोई यहाँ पे डरने की बात है नहीं. मेरे को कोई बेरिशनेस नहीं दिख रही. एक हेल्दी मंथली क्लोज हुआ है यहाँ पे विद प्रायर मंथली बीइंग अ गुड हेल्दी कैंडलस्टिक. आपको सिर्फ एक कैंडलस्टिक ध्यान रखनी है, रफली एक लेवल ध्यान रखना है, इसका 50%, इस कैंडलस्टिक का 50%. सिंपल. 52,700, below 52,700 there is a high probability that we might do 50,000, and also बैंक निफ्टी करंट लोज इज 48,000. ठीक है, ये लेवल ब्रीच नहीं होना चाहिए विच इज 52,730. एंड मार्केट अभी आई थिंक बैंक निफ्टी स्टिल हैज प्रोबेबिलिटी टू डू 2 to 3 more months of bullishness. अगर आप लास्ट टाइम पास्ट देखोगे तो मार्केट्स टेस्टेड मंथली 20 में, बट एक दो और यहाँ पे एक डोजी बना था, तो प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी भी एक डोजी बना सकता है. बट और एग्जैक्टली देखो क्या होगा, ये मंथली 5 है तो यहाँ तक आके मार्केट एक डोजी बना सकता है वापस यहाँ पे रिट्रेस करने के लिए. फिर यहाँ से अगला मंथ, सो द मंथ ऑफ मे कैन बी अ पॉज मंथ फॉर बैंक निफ्टी, एंड द मंथ ऑफ जून कैन बी अगेन बुलिश. बट जून का बाद में देखेंगे, जून का वी विल फिगर आउट इन द एंड. बट फर्दर बुलिशनेस इन बैंक निफ्टी विल ओनली एंड ओनली कम अबव 55,800. इसके ऊपर 56,500 टारगेट कर सकते हो, 57,000 आप टारगेट कर सकते हो, एंड 58,000 ऑल्सो. ठीक है. बिलो आई थिंक बिलो 52,730 ही एक पोजिशनल शॉट्स बन के आएगा विच कैन टेक यू टू 50,000. ठीक है. अभी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 52,730. वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्विकली. ठीक है, वीकली हाई आपका रफली ये देखो यही है 56,000, रफली एग्जैक्टली 55,958 है. तो अगर और प्रिसाइसली देखेंगे तो 56,000 ये आएगा. एंड जो स्विंग बुल्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में दे विल गेट ओनली अबव 56,000 डेली क्लोज. Until and unless daily close above 56,000 in bank nifty it happens, until unless it does not happen, please do not go long in bank nifty. Bank nifty might go in time correction, not price correction but time correction, because bank nifty has seen a long bullish rally from past I think 6 to 7 weeks. Alright, so bank nifty में long 56,000 के ऊपर ही आएंगे. एक स्विंग शॉट्स छोटा सा आपका किसके नीचे आ सकता है, ये वाली लेवल के नीचे, प्रायर वीकली लो which is 54,500. below 54,500 you can easily target 52,730. so ये वही वाली ट्रेड है जो मैं ट्रेड बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी की, जो निफ्टी से करस्पॉन्ड करती है, द डाउन मूव टिल 23,100 23,200, ये वही वाली ट्रेड है. सो इफ वी स्टार्ट ब्रेकिंग
prior weekly low which is 54,500 and we sustain a daily candlestick below it, expect 52,730 to come and markets to take support again from here and go up like this. Simple. ठीक है, तो बुलिश कौन से किस सिनेरियो में जाना है, व्हेन यू हैव टू गो बुलिश एंड व्हेन यू हैव टू गो बेरिश, इट्स ऑल क्लियर. लेट्स गो टू क्विकली गो टू डेली टाइम फ्रेम. और डेली टाइम फ्रेम में सेम प्राइस एक्शन इधर भी है. मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है. 56,100 है लास्ट मंथली क्लोज, ओ सॉरी लास्ट वीकली क्लोज, फिर यही होगा मेरे हिसाब से 55,950, राइट. सो इफ वी एंड प्रायर डे लो देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक रेंज में फंसा हुआ है, वो रेंज है 56,000 एंड 54,500. सिंपल, ये वही रेंज है जो निफ्टी में फ्रॉम 24,200 टू 24,600, दिस इज द सेम रेंज. बट बैंक निफ्टी में एक पैटर्न ये बन सकता है, ये वाला एक पैटर्न बैंक निफ्टी में बन सकता है और इसका मूव आएगा ये वाले सपोर्ट तक विच इज 52,000. सो बिलो 52,730, 52,000 विल बी एन इजी टारगेट. सो ये वाला एम पैटर्न एक्टिवेट कब होगा, बिलो 54,500 विच इज प्रायर वीकली लो. यहाँ पे अगर ये ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में एक स्मूथ स्लाइड आपको ऐसे 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 देखने को मिलेगा, जिसका सपोर्ट आपको इस लेवल पे कहीं मिलेगा. तो ये लेवल भी मैं मार्क करके दे देता हूँ फॉर यू गाइज. दिस इज द लेवल ऑफ 52,000. सो हो सकता है it this is possible that if the bank nifty slides below 54,500 then this trade is easily possible और यहाँ पे एक support बना के market again it can go back up, right. I hope the price action is clear to you guys and I'll mark this level. लॉन्ग्स आपको सिंपल है, इसके ऊपर ही जाना है. तो लॉन्ग्स के लिए जो सिंपल प्राइस एक्शन बनेगा वो यही बनेगा, रैली पॉज, एक ट्रैप एंड देन रैली, रैली पॉज. हो सकता है यहाँ से एक ट्रैप कर दे मार्केट या अपसाइड पे एक बहुत बड़ा गैप अप खोल दे. अगर अपसाइड पे बहुत बड़ा गैप खोलता है तो ये गैप कवर होने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, राइट. बट अगर बैंक निफ्टी में गैप अप खुलता है बड़ा वाला तो स्टिल मेरा स्टैंस रहेगा कि जैसे ही मार्केट, लेट्स सपोज मार्केट, द मार्केट्स आर ओपनिंग एट दिस लेवल 56,000, 55,900, तो द मोमेंट अ डेली क्लोज or I think 2 hour or 3 hour close happens above it, you can plan to go long for 58,000. और ये वही वाला मूव होगा 58,000 वाला जो निफ्टी को लेके जाएगा 26,000 तक. सिंपल है, ठीक है. तो ऐसे इंडेक्सेस लाइक दिस स्टे इन सिंक. ऑलराइट, सो बिलो 54,500 you will see the first move till 54,200, second move इस लेवल की आई डोंट थिंक सो देयर इज द नीड ऑफ 52. अच्छा ये 50% है, 52,700. सेकेंड मूव विल बी टिल 50% एंड द फाइनल लेवल विल बी 52,000. 52,000 पे वही आएगा लेवल 23,000 वाला निफ्टी में भी एंड द मार्केट्स विल टेक अ डिसीजन हियर. ऑलराइट, let's go quickly go to 15-minute time frame. On the basis of opening we will decide that what to do. So 15 minutes में अगर if the bank nifty opens a big gap up, so simple है, यहाँ पे gap up है तो I'll only wait for clearing the level of 56,000. 56,000 के ऊपर plainly आप bullish हो सकते हो and you can target all these levels, right. अगर market flat खुलता है, if the markets are opening flat, just do not trade in this range. Simple, 56,000 and 54,500. ये एक काफ़ी बड़ी रेंज है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग, प्लीज़ डू नॉट ट्रेड इन दिस रेंज. अदरवाइज क्योंकि होगा क्या, आप मान लो यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हो, मार्केट गिरेगा, आप एग्जिट करोगे, मार्केट विल टेक अ सपोर्ट फ्रॉम हियर, देन ये पूरी ये रैली भी मिस हो जाएगी एंड देन व्हेन यू विल गो लॉन्ग हियर, मार्केट यहाँ से ड्रॉप कर देगा. ऑलराइट, so refrain trading from this range. Above and below this trading range only a good move will happen, right. I think some levels have been cleared out, so मैं वो levels वापस ले आता हूँ. If on the break of prior daily low, I think अभी हमने मार्क किया था, prior daily low is 55,000. अगर 55,000 ब्रीच होता है तो 55 भी नहीं है, 55,100 है, 55,200 मान लो आप रफली. अच्छा ये तो आई थिंक ग्रीन लेवल है, 55,000 ही है. बिलो 55,000 यू कैन इजीली टारगेट 54,500, बट 54,500 इज प्रायर वीकली लो.
सो 54,500 अगर टूटा तो 54,200 एक इजी लेवल आ जाएगा आपके पास, और 54,200 अगर टूटा 54,000 एंड बिलो 54,000 ये पूरी कैंडल स्टिक ही कवर हो जाएगी। ऑलराइट, सो ये था बैंक निफ्टी का डिस्कशन। वंस we'll have a look that how our other index is doing. Alright, निफ्टी आईटी इज प्योरली साइडवेज फ्रॉम मल्टीपल डेज। निफ्टी आईटी में एक अच्छी खासी रेंज है, अगर ये रेंज इंडेक्स निकाल देता है तो इट कैन बी बुलिश, और मुझे निफ्टी आईटी में पर्सनली कोई नेगेटिविटी लग नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि मार्केट हाई तो एग्जैक्टली बना रहा है बट लोअर लोज बना रहा है। सो दिस इज एन इंडिकेशन कि निफ्टी बैंक में सेलर्स निकलते ही चले जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बुलिश प्राइस एक्शन होता है। एंड अबव 36,250 यू कैन इजीली टारगेट 38,000। ऑलराइट ट्रेडर्स, सो निफ्टी आईटी में मुझे इतना कोई बेरिशनेस लग नहीं रहा। ऑटो में ठीक है, ऑटो में आई विल नॉट गो दैट मच बुलिश, बट ऑटो में भी एक रेंज प्ले हो रही है पूरे, आई थिंक ऑल ओवर द मार्केट, वेदर इट्स ब्रॉड इंडेक्सेस, वेदर इट्स आईटी, वेदर इट्स बैंकिंग, सब इंडेक्सेस में रेंज फॉलो हो रही है। सो अबव 22,500 वी विल डू 23,680 इन निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में कौन से स्टॉक्स आते हैं आपको मालूम ही है। बिलो 22,000 दिस विल बी नेगेटिव फॉर निफ्टी ऑटो। निफ्टी मेटल की बात करें, मेटल इज गोइंग लिटिल बिट नेगेटिव, और मेटल कैन करेक्ट फर्दर विद अ प्राइस एक्शन एंटिसिपेशन ऑफ लाइक दिस, ये वाला, ठीक है। निफ्टी ऑयल एंड गैस एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर मुझे दिख रहा है, जो आने वाले टाइम में एक अच्छा प्राइस एक्शन दे सकता है मार्केट को। अगर ऑयल एंड गैस 11,420 या 4,500 निकाल देता है, नेक्स्ट टारगेट विल बी 580, एंड उसके बाद ऊपर होगा ये वाला टारगेट 12,000। तो ऑयल एंड गैस मुझे एक डिसेंट इंडेक्स लग रहा है फॉर बुलिश अपॉर्चुनिटीज। बेरिश अपॉर्चुनिटीज गो फॉर मेटल, ठीक है। ओआई डेटा डिस्कस करते हैं अब। 24,300 पे अगर आप एट्थ में की एक्सपायरी के लिए कॉल ऑप्शन देखोगे तो रफली रफली 170 पॉइंट्स प्रीमियम है। सो मींस एक जो अच्छा मूव आएगा व्हेन दिस कॉल सेलर्स विल पैनिक अबव 24,300 प्लस 170, रफली रफली 200 पॉइंट्स ले लो। सो अबव 24,500 ये थोड़ा थोड़ा पैनिक करना स्टार्ट करेंगे, बट अबव 24,600 दे विल स्टार्ट एग्जिटिंग, और वही लेवल होगा जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कराएगा। बड़ा सपोर्ट कहाँ है आपका, फॉर द टाइम बिंग 24,300 पे है, बट अगर वो ब्रेक होता है तो 24,000 पे ही एक बड़ा सपोर्ट। निफ्टी बैंक में the OI change on Friday which went is almost addition of 4 crore shorts and roughly around 1.8 cr longs. In Nifty, the data which has been carried is quite bearish, and the biggest resistance which got added is at 24,500. If we look at total open interest, the heaviest रेजिस्टेंस इज एट 24,500, तो 24,500 को क्रॉस करना भी इतना इजी नहीं होगा, बट अगर होता है तो 25,000 सिंपल इजी टारगेट है। गुड सपोर्ट इज एट 24,000 ओनली एंड ओनली, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स क्विकली गो टू, एंड अगर आप ओवरऑल ओवाई भी देखोगे, टोटल ओवाई देर आर 8 CR शॉर्ट्स एंड ओनली 4 CR ऑफ लॉन्ग्स इन द मार्केट, सो डबल नंबर ऑफ शॉर्ट्स है। तो डेटा इज बेरिश, और जो फ्राइडे को भी निफ्टी में डेटा कैरी हुआ है वो बेरिश ही है। सो अगर फ्लैट टू गैप डाउन खुलता है, लुक फॉर अ सेल ऑन राइज मार्केट, बट गैप अप खुलता है तो ये डेटा फिर चेंज हो जाएगा, फिर आपको री एनालिसिस करना पड़ेगा कि चल क्या रहा है मार्केट। कमिंग टू बैंक निफ्टी इज शोइंग एन ऑपोजिट पिक्चर, मोर नंबर ऑफ लॉन्ग्स आर कैरिड एज कंपेयर टू शॉर्ट्स। 1 lakh shorts are being carried, but in contrast 3 lakh longs are being carried. So बैंक निफ्टी में डेटा इज बुलिश। सो सिनेरियो और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखोगे तो पुट वाइज ज़्यादा है बाय 2 lakhs, with biggest support being at 55,000 and second biggest at 55,000 and biggest at 54,000, with resistance being at 55,500. So ये रेंज है 55,000 55,000 अकॉर्डिंग टू ओआई डेटा, बट डू गिव द प्रायोरिटी टू चार्ट्स बिफोर द ओआई डेटा। अगर हम 55,000 के ऊपर निकलते हैं तो 55,500 ईजी है, 56,000 ईजी है। हमने क्या डिस्कस किया था, लॉन्ग्स अब ओनली एंड ओनली, हेल्दी लॉन्ग्स विल ओनली एंड ओनली कम अबव 56,000। तो आपको मैंने दोनों का एनालिसिस दे दिया है, इट्स योर चॉइस कि कहाँ से फॉलो करना है। व्हाट वी विल बी डूइंग इज गोइंग लॉन्ग इन बैंक निफ्टी ओनली एंड ओनली अबव 56,000। Alright, so this was it guys, this was the full in-depth discussion, and it's been almost 40 minutes, and if you have
been watching this video for a long from the starting. I hope that I have contributed in your trading journey. I have make you something learn through this video, and also I'm able to help you in trading the next week. I hope I am very very clear. अगर कोई भी doubt है that if you're not able to understand anything, do let me in the comment sections, and you can also let me know that how was this video. Was it in depth, or was it more depth can be given, right? Whatever it is. So with this, we can wrap this video. Be safe, be safe in the markets. Keep your trades SL hedged, specifically on the longer side, because नीचे से हम एक अच्छा खासा we have seen a 2 month rally from the bottom. All right, so keep your trades hedged. और हमने stock specific trades भी ली थी in some stocks, which you will get to know in the Telegram group itself. All right, traders, that's it for today. That's it for this video. Stay safe. Cheers.